Hi student, let's join me and start the linear equation in two variable NCERT question 4.1. Question number first. The cost of the notebook is twice the cost of the pen. Write the linear equation in two variable in this. Here given that take the this notebook bx, then what is the equation? So x equal twice the cost of pen means x equal to 2y. We can write x minus 2y equal to 0. Okay, next is question number 2. Now you have to choose the value of a b c. So 2 is a, 3 is b and minus 9.35 is your c. क्योंकि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रखोगे तो ये हो जाएगा. तो ओके, नाउ कम see the question number ये exercise 4.2. which of the following option is true and why? This has, तो linear, this is linear equation in two variable, it has infinite many solution. write the four solution for each of the following. तो फोर सॉल्यूशन राइट करने के लिए हमेशा याद रखिए कि जितना भी सॉल्यूशन है देयर इज नो एनी प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विद द हेल्प ऑफ द linear equation in one variable, with the help of a linear equation in two variable. So what is the process? How can find the? So you have to put, take the question number 2 question first. 2x plus y equal to 7. So you have to put x equal to 0. Then y equal to what? 7. Then first solution is 0, 7. ठीक है. Similarly put x equal to 1. Then what will happen? 2 into 1 plus y equal to 7. Then y equal to what? 5. Then what is the solution? 1, 5. इस तरह आप इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द दिस एंड विच आर नॉट. तो कोई भी जब भी रिमेंबर दिस वेन एवर क्वेश्चन आस्क दैट प्रूव दैट or check this point coordinate of point lies on the any linear equation, lies on the line or a line passes through the given point. तो इसका प्रूफ क्या होता है कि उस पॉइंट को जैसे 0, 2 है उस एक्स वाई के वैल्यू में पुट कर दो. अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो लाइज करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है तो नहीं लाइज करता है. तो 0, 2 आप रखोगे तो 4 नहीं मिलेगा. 2 नो, दिस इज नॉट 4 0, this satisfies. So this is your answer. Similarly you can check the other question. Question number 4. Find the value of k if this solution of the, this is the solution of the this equation. So when you put in this x equal to 2, y equal to 2, you will get the value of k. So put the x, so 2 into 2 plus 3 into 1 equal to k. So this is your what? K equal to your 7. This is your answer. Okay, come next exercise. Exercise 4.3. See, draw the graph. तो ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे. सबसे पहले टेबल बना लेंगे इस तरह का और 3 बॉक्स जरूर बनाएंगे. x और y लिख लेंगे और यहाँ पे जैसे x प्लस वाई 4 है तो 0 और दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 2. ये हो गया. फिर ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए 0, 1, 2 इस तरह से, 1, 2, 0, 1, 2 इस तरह से कर दीजिए. ठीक है. गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासेस थ्रू द, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Give the equation of 2 lines passing through this, how many more such lines are there and why. तो एक पॉइंट से इन्फाइनाइट, आपको पता ही है एक पॉइंट से इन्फाइनाइट लाइन पास करता है. अब इसका आपको 2 इक्वेशन देना है, 2 इक्वेशन देना है. तो आप सिंपली आप लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू, अब इक्वल टू बाद में लिखना. अब x की जगह 2 पुट करो और y की जगह 14 पुट करो तो ये लिखेगा 16. आप पुट करके देख लो. इसी तरह 2x प्लस
वाई लिख लो। अब यहाँ पुट कर दो 4 प्लस कितना चाहिए, 2 पुट करोगे 4 प्लस 14 यानी हो जाएगा 18। इसी तरह आप इन्फिनिटी इक्वेशन अपने मन से बनाना है, आपके लिए यहाँ कोई प्रोसेस नहीं है, अपने मन से बनाना है। ओके, फ्रॉम द चॉइस क्वेश्चन नंबर, सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 इफ ए पॉइंट दिस लाइज ऑन द ग्राफ दिस फाइंड द वैल्यू। तो इसको उसी तरह बना देंगे जैसे के का वैल्यू हम निकाले थे अभी पिछले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, this is the very important question and always selected for the examination. Okay, so must see, this is the very famous question. The tax fare in city is a follow. For the first kilometer the fare is 8 kilometer, one first kilometer के लिए 8 रुपीज़ लग रहा है। Okay, and for the subsequent distance it is 5 per kilometer, taking the distance cover x kilometer, distance है x kilometer total, एंड फेयर टोटल है वाई रुपीज़, टोटल फेयर है। तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, तो फेयर वाई और फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ प्लस, अब बाकी कितना बचा आपका, बाकी किलोमीटर बचा x-1, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये हमने लिख दिया, तो x-1 और x-1 के लिए कितना लग रहा है 5 रुपीज़। तो इक्वेशन जो बनेगा आपका वो बनेगा y इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू x-1। नाउ सॉल्व दिस, विल गेट y इक्वल टू 8 प्लस 5x minus 5। then what is the equation is your y equal to 3 plus 5x. okay, so this is your equation. You can write like this, 5x minus y equal to minus 3, like this. Question number 5, this is very important. Here given from the given equation, ये पता करना है कि given equation to satisfy the which linear ये ग्राफ। तो इस ग्राफ को देखो, इसका कोऑर्डिनेट है -1 1 0 0 -1 1 0 0 एंड 1 माइनस। अभी तीनों कोऑर्डिनेट को, तीनों को वैल्यू ऑफ एक्स को आप इसमें पुट करो, इन सारे इक्वेशन में पुट करो। तो देन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो -1 यहाँ 1 नो, दिस -1 एंड 1 0, यस, इसको सेटिस्फाई करेगा। 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0 एंड 1 प्लस -1 प्लस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 0 0। सो ये सेकंड को सेटिस्फाई करेगा, तो ये इसका इक्वेशन होगा। इसी तरह आप चेक कर सकते हो आगे। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6, if the work done by the body application of the constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। तो मान लीजिए कि आपका फोर्स है, वर्क जो है वो y है और डिस्टेंस टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है, ये वर्क है फोर्स। तो आपको पता है कि ऐसे भी इसमें गिवन है अकॉर्डिंग टू साइंस F प्रोपोर्शनल टू ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बोल रहा है या वर्क कहिए। तो y अगर हम इसको लें और तो ये दिस इज प्रोपोर्शनल टू x। नाउ y प्रोपोर्शनल टू x, देन y इक्वल टू व्हाट, 5x, वेयर 5 इज कांस्टेंट गिवन है क्वेश्चन में, वेयर 5 इज कांस्टेंट। जैसे आप एक प्रोपोर्शनल टू लिखते थे, साइंस में आपको पढ़ना था, है ना, तो इस तरह से और प्रोपोर्शनल को, ये प्रोपोर्शनल साइन को चेंज करने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये कांस्टेंट इज योर 5, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। तो योर इक्वेशन इज y इक्वल टू 5x। नाउ कह रहा है कि 2 यूनिट है अगर आपका डिस्टेंस, तो यहाँ x डिस्टेंस या वर्क जो भी कहिए, तो वहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो आपका फोर्स सप्लाई 10 न्यूटन होगा। अगर y इक्वल टू 5 इंटू 0 है तो आपका फोर्स भी 0 होगा। अगर वर्क 0 है तो फोर्स भी 0 होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7,
दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस द वेरी इजी क्वेश्चन. कह रहा है कि दो यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ. तो मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू कितना 100. इट्स वेरी इजी. अब बॉक्स बना लो और सबका वैल्यू देख लो, x और y का 50 कर लो, 40 60 कर लो, इसके बाद ग्राफ बना दो, हो जाएगा. And this is the very easy question, question number 8. This is suppose that x 9/5 y plus 32. अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर दे. सॉल्व करने के बाद इसको जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसको कर दो. ओके.